टॉपिक चल रहा है ना बेटा, जो कल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, दैट वाज रिलेटेड टू दिस probability theory. So in last lecture we discussed something about this. First one was outcome, second term was sample space, third term was random experiment and event. जो हमारा लास्ट लेक्चर था ना, प्रीवियस लेक्चर, इन प्रीवियस लेक्चर we discussed something about outcome, we discussed something about sample space, random experiment and event. So now we will go on and you people observe what we have to do. बेटा कल मैंने आपको कहा, if we have a coin and we are throwing a coin simultaneously, two coins, तो आप लोगों ने कहा था सर sample space will be head comma head, head comma tail, या tail comma head या head comma tail, tail comma tail and tail comma tail. तो बेटा कल वाले लेक्चर में आप लोगों ने कहा कि सर sample space means when we are performing an experiment, the total outcomes of an experiment is called a sample space. या example number second, when we are throwing a die has a 6 faces, then there will come 1 2 3 4 5 and 6. The outcomes of an experiment represents sample space. But sir, if we take an event E equal to 1 3 5, the set of odd numbers which comes when a die is thrown, then the E represents 1 3 5. Sir, F is an event which represents the combination of even numbers when a die is thrown. तो आपने कहा 2 4 and 6. yes sir. सभी लोग देखेंगे बोर्ड पे, concentrate on this point. S represents sample space, E is an event, F is an event. जो लोग ऑनलाइन है ना, आप में से मुझे कोई बता, on what basis you are saying E is an event and on what basis you are saying F is an event? Exactly. आप लोगों ने कहा जो E है ना, it is subset of S. जो F है ना, it is subset of S. Any subset of sample space is known as event. बेटा क्लियर? ओके, अब यहां पर थोड़ा कंसंट्रेट करना. अगर मेरे पास E इवेंट है, F इवेंट है, अगर मैं इन दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन लूंगा, E इंटरसेक्शन F, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन बिटवीन टू, तो आप लोगों ने कहा सर इनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज 5, दैट इज 5. तो बेटा जब दो इवेंट्स होंगे ना, एंड occurrence of one event prevents the occurrence of second event, means अगर आपने कहा शाहिद we are throwing a die, तो आपने कहा the total outcomes is 1 2 3 4 and 5 and 6. yes, sir, E represents an event that during throwing a die, E represents the odd numbers, that is 1 3 5. तो obviously then the even numbers will not come out. तो बेटा occurrence of odd number prevents the occurrence of even number, that means E और F के intersection में कुछ भी नहीं है. These the event, then these two events E and F are called mutually exhaustive events. जो आज हमें पढ़ना है जहरा टॉपिक, that is when we can say two events are mutually exhaustive, when we can say two events are mutually exclusive events. तो सभी लोग देखेंगे, मैंने आपको कहा we are throwing a die, तो आपने कहा sample space is 1 2 3 4 5 6. I say E is an event which represents set of odd numbers. जब मैंने कहा ना E represents set of odd numbers, occurrence of odd, तो आप लोगों के माइंड में आया कि जब odd नंबर आकर होंगे
the existence of even numbers does not exist. Such type of events E and F represents exhaustive events. These are called mutually exhaustive. तो सिंपल फंडा है इसका. एग्जॉस्टिव का मतलब व्हेन occurrence of one prevents the occurrence of second. आप बेटा यहाँ पर थोड़ा कंसंट्रेट. अगर मैं आपसे पूछूंगा E यूनियन F ले लो. E यूनियन F का मतलब है E के भी एलिमेंट्स लेने, F के भी एलिमेंट्स लेने, रिपीट वाले एलिमेंट्स नहीं लेने. तो आपने कहा दैट इज 1 2 3 4 5 and 6. शायद ये मिलेगा. आपने कहा जब E और F का हमने यूनियन लिया तो वो पूरी सैंपल स्पेस के बराबर मिली. Such type of events are called mutually exclusive events. तो बेटा mutually exhaustive means when occurrence of one event prevents the occurrence of second, and mutually exclusive means when we are taking union of the events we are getting the whole sample space. Such type of events are called mutually exclusive events. बेटा clear? Probability theory and probability theory में हम लोगों को कुछ definitions थे. That was what is called sample space, what is called experiment, random experiment क्या होता है, event क्या होता है, mutually exclusive event क्या होता है, mutually exhaustive events क्या होते हैं बेटा. तो hopefully you get all the things rightly. सभी को क्लियर हुआ? अब थोड़ा आपकी एक्सरसाइज पे हम जाएंगे तो सभी लोग देखना ध्यान से. बेटा आप लोगों को वहां क्वेश्चन मिलेगा कि आप कैलकुलेट कर लो सैंपल स्पेस. वालेकुम सलाम बेटा. देखो बेटा BCA एंड 11th वाले स्टूडेंट्स, तो बेटा अब आप लोगों को वहां क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द सैंपल स्पेस, find the sample space when a coin is tossed 3 times. यार भी क्या है बेटा? सभी लोग देखेंगे. सारिका बोर्ड की तरफ देखो. आप लोगों को वहां क्वेश्चन मिलेगा व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस, फाइंड द सैंपल स्पेस व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. सभी लोग करेंगे कंसंट्रेट ऑन बोर्ड. बिल्कुल बोर्ड पे देखो. फाइंड द सैंपल स्पेस व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. बिफोर गोइंग ऑन क्वेश्चन अरविंद आपको पता होना चाहिए सैंपल स्पेस क्या है. आप लोगों ने कहा सैंपल स्पेस का मतलब है टोटल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, है ना. हमें एक्सपेरिमेंट क्या करना है, एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करना है. ए कॉइन इज टॉस्ड. तो बेटा सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे सॉल्यूशन. यहां पर किसकी बात हो रही है, कॉइन की. जब आपके पास एक कॉइन है ना, या उस पे हेड होगा या टेल होगा. मुझे बताना जब कॉइन को टॉस करेंगे कितने ऑप्शन है, 2. लेकिन अरविंद आपको कॉइन को कितने बार टॉस करना है, तो 2 raised power 3. 2 raised power 3 मीन्स 2 into 2 into 2, तो दैट इज 8. इसका मतलब है जो आपके सैंपल स्पेस है ना उसमें 8 होंगे, 8 एंट्रीज. आप कैसे होंगे सभी लोग देखेंगे ध्यान से. आपने कहा हर एंट्री में या हेड या टेल. तो बेटा सभी लोग देखना, मैं सिखाऊंगा. जो ऑनलाइन है ना, अगर कहीं डाउट है मुझे बताना. आपने कहा इसकी जो कार्डिनलिटी है, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे कितने होंगे, 8 का हाफ ले लो कितना होगा. तो इसमें आएंगे 4 हेड, 1 2 3 4, 4 टेल, 1 2 3 4 हो गए ना. आप 4 हो गए. 4 का हाफ ले लो 2. हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल. 2 का हाफ ले लो 1. हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल. तो बेटा जो आपकी सैंपल स्पेस होंगे ना, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो वो होगी हेड 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 या हेड हेड टेल या हेड टेल हेड. वेरी गुड. हेड टेल हेड या हेड टेल टेल या शायद टेल हेड हेड. वेरी नाइस या बेटा. टेल हेड टेल या
या टेल टेल हेड रिपीट। सभी लोग देखना 1 2 3 4 5 6 7 यही कहा आपने। अरविंद क्लियर? सारिका बेटा आपका क्लियर हुआ? जो ऑनलाइन लोग है ना सभी लोग देखना। अब आप लोग कह रहे हैं कि फाइंड सैंपल स्पेस, फाइंड सैंपल स्पेस। आपको अरविंद सैंपल स्पेस निकालनी है। क्या निकालनी है? लेकिन आप कह रहे हो ए डाई इज थ्रोन टू टाइम्स। सभी लोग देखेंगे ध्यान से, मुझे बताना हमें निकालनी है सैंपल स्पेस। ए डाई इज थ्रोन टू टाइम्स। आपको पता है एक डाई में 6 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन। और हम इस डाई को कितने बार डाई को थ्रो कर रहे हैं? 2 बार। तो आपने कहा 6 रेज़ पावर 2 दैट इज 36। दैट इज 36। सभी लोग देखेंगे ध्यान से, हमें सैंपल स्पेस निकालना। आपने कहा ये डाई है, इस पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब इसी डाई को मुझे 2 बार थ्रो करना है। आपने कहा 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो आपने कहा सैंपल स्पेस मिलेगी ऐसे अरबी में सिखाऊंगा। सर जब मैंने थ्रो किया ना पहले बार वहां मिला 1, जब मैंने दूसरे बार किया वहां भी मिला 1। अब अरविंद आपने पहली बार किया वहां 1 मिला, दूसरे बार मिला 2, फिर 1 मिला, फिर क्या मिला 1 4 1 5 1 6। अरविंद कुछ क्लियर? दिस मीन्स जो पहला वाला डाई है ना उस पे हम 1 को फिक्स रखेंगे, जो दूसरे वाला टास्क है ना उस पे पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 मीन्स 1 हर एक के साथ चलेगा। इसके बाद आपने कहा नहीं सर मैं पहले पे रखूंगा 2। बताओ अब क्या आएगा? 2 कामा 2 कामा 2 3 2 कामा 3 2 4 वेरी गुड 2 5 2 6 वेरी नाइस। इसके बाद 3 1 3 कामा 1 3 2 हाँ 3 3 हाँ 4 वेरी गुड 3 कामा 6। इसके बाद 4 कामा 1 4 कामा 2 4 कामा 3 4 कामा 4 4 कामा 5 4 कामा 6 isn't it? फिर 5 कामा 1 5 कामा 1 2 5 कामा 3 5 कामा 4 5 कामा 5 5 कामा 6 isn't it? लास्ट पे 6 कामा 1 2 3 4 6 कामा 5 6 कामा 6। अरविंद गिनना देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 6 को 36 तो टोटल होंगे इसमें 36 ही का ना। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द सैंपल स्पेस। बेटा थोड़ा कंसंट्रेट ऑन बोर्ड। आपके पास अरविंद डाई है, आपको डाई को थ्रो करना है 2 बार। आपने कहा 6 रेज़ पावर 2 दैट इज 36। सर अगर मैंने डाई को थ्रो किया पहले बार 1 मिला, दूसरे बार भी 1 मिला। नहीं सर पहले बार 1 मिला, दूसरे बार 2 मिला, पहले बार 1 मिला, दूसरे बार 3 मिलेगा। सिमिलरली वी कैन डू दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द सैंपल स्पेस। बेटा ये भी क्लियर? ए स्पेस ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। ये मैं सिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग खुद करेंगे। आपको कॉइन को टॉस करना। आपने कहा कॉइन पे या हेड या टेल है तो 2 ही ऑप्शन है, लेकिन कितने बार करना है? तो आपने कहा 2 रेज़ पावर 4 दैट इज 16। अभी मैंने सिखाया। अब आपके पास टोटल कितने होंगे? हम 16 का हाफ लेंगे तो 4 हेड 1 हेड 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टेल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब 8 का हाफ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 4। अब 4 का हाफ 1 2 1 2 1 हेड 2 टेल 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 head, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल isn't it? Yes, sir. इसके बाद इसका भी Head, tail, हेड head, टेल tail, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो बेटा आपने कहा मेरे पास सर जो सैंपल स्पेस मिलेगी ना
दैट इज इक्वल टू एस। उसमें चारों पे हेड होगा, हेड हेड हेड, Head, या head, दो पे हेड, दो तीन पे हेड, एक पे टेल। तो आपने कहा ये पूरा इसका बन गया सैंपल स्पेस। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट सैंपल स्पेस व्हेन वी हैव गिवन द गिवन एक्सपेरिमेंट। द टोटल आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। बेटा क्लियर? पक्का? तो आज के लिए इतना काफी। ओके बेटा, बाय।